I am Dr. Arup Karmakar, vascular and interventional radiologist, speaking from Bhejocare Clinic, Guwahati, Rajgarh Road. Do you know that the girl's problem, girls or the ladies' problem, if she is keep herself isolated, if she is irritable, दूसरों से अपना दोस्त या अदर फैमिली मेम्बर से अपने आप को सेपरेट रख रही है, फीलिंग स्लीपी, शी इज फीलिंग fatigue or weak, sometimes she may keep herself away from the social gathering and all. She may have some gynecological issues with her. Sometimes she may have heavy menstruation, abdominal cramp, low backache, or tired or fatigue due to anemia because of more and more blood loss in the menstrual cycle. And she may had also excessive bleeding at the time of menstruation and inter cycle bleed also. That means every frequent bleeding or interperiod bleeding also. If someone is feeling like that or someone is having the problem like that and she is ashamed to discuss her problem with others, any other of the family members, then you can counsel her, you can take him the doctor, and the doctor generally advise for the ultrasound of the abdomen or the lower abdomen, and the ultrasound may give you the solution or give you the diagnosis what she have. If she may have the uterus tumor, that is fibroid, or she may have the adenomyosis of the uterus, which certainly give the pelvic pain and all. अगर उनको ये सब प्रॉब्लम है, जैसे फाइब्रॉइड का वजह से कभी पेट में दर्द या बैक एक भी हो सकती है, या फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जा सकती है, तो शी माइट हैव सम गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको कोई गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हैवी मेनिस्ट्रियल ब्लीडिंग और इंटरवल ब्लीडिंग और इंटर पीरियोडिक मीन्स दो साइकिल का बीच में फिर से उनको ब्लीडिंग आ रहा है, या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग मोर देन 8 to 10, more than 5 days of bleeding in the cycle. And due to this, she may have some anxiety, or she may get some fatigue and the tiredness feeling also. And for the diagnosis, you can go for a ultrasound also. The ultrasound can give you if anything wrong with your uterus, आपका बच्चेदानी में या यूटेरस में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे यूटेराइन फाइब्रोइड हो, एडिनोमायोसिस हो, या एंडोमेट्रियल सिस्ट हो, कुछ हो, तो वो डायग्नोस हो जाती है। और ये अगर इस टाइप की जैसे आपका फाइब्रोइड है, तो ये फाइब्रोइड जनरली बिनाइन कंडीशन का होती है, ये कैंसरस फॉर्म नहीं होता है। इट इज़ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू द कैंसर, जनरली इट डजंट। एंड मेनी टाइप्स ऑफ दिस fibroid also, like submucosal, intramodal, or the subserosal. And many of the ladies is having the fibroid, and it may be silent also without asymptomatic. Patient may be asymptomatic, patient may डज नॉट, पेशेंट का कोई सिम्टम्स नहीं भी हो सकती है कुछ फाइब्रोइड्स में। अगर ऐसा है, कभी कभी इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाती है, जब किसी और वजह से आप अल्ट्रासाउंड करें, आपको शायद डायग्नोज हो जाए। अगर ये एसिम्टोमेटिक है, उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए और उनको फॉलोअप में रखिए। कोई ग्रोथ तो नहीं कर रहा है या उनका नेचर तो चेंज नहीं हो रहा है। और अगर कुछ डाउट है, कुछ सस्पिशियस ट्यूमर टाइप है जिसमें अल्ट्रासाउंड या pelvic examination or any other test, it doesn't give the final diagnosis, then you can go for a MRI. Particularly if the young ladies or the girls, you can, to diagnose the suspicious lesions, you can, आप एक MRI कर सकते हो। MRI will give the complete diagnosis of the of your tumor or any other disease having in your uterus. और कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, शायद आपका ट्यूमर है, फाइब्रोइड है, या एडिनोमायोसिस है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहे हैं, आपको जनरली सजेस्ट किया जाता है इधर मेडिसिन। अगर मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता है, तो जनरली सर्जरी के लिए सजेस्ट की जा सकती है, जैसे मायोमेक्टोमी या हिस्टेरेक्टोमी। इफ इट इज़ एडवांस्ड एज, फैमिली इज कंप्लीट, देन जनरली हिस्टेरेक्टोमी के लिए भी डॉक्टर जनरली सजेस्ट करते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो है कि बहुत सारे सर्जन्स या डॉक्टर्स आपको शायद एक ऑप्शन आपको कभी देते नहीं है, दैट इज़ द, इफ़ यू आर हैविंग द ट्यूमर और द एडिनोमायोसिस, तो इनका जो और एक FDA अप्रूव मॉडर्न बेस्ड ट्रीटमेंट है, वो है यूटेराइन फाइब्रोइड या यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। दिस एम्बोलाइजेशन can give you the complete solution if your problem is not resolving after taking the medications and all. And मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स या सर्जन आपको कभी ये ऑप्शन के बारे में शायद नहीं बताएगा, जो आजकल मॉडर्न और बेस्ट ट्रीटमेंट है
एडिनोमाइसिस या यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए, वो है यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या यूटेराइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या हो जाता है, आपका हथेली या ग्रोइन में एक छोटा सा पंक्चर लेके, नीडल से एक छोटा सा पंक्चर लेके उसके थ्रू एक कैथेटर गाइड वायर यूज़ करके पार्टिकुलर मेडिसिन उस डिजीज एरिया में या ट्यूमर या डिजीज एडिनोमाइसिस एरिया में, या आपका और किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है जिसका मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, उसमें मेडिसिन डाल के हम इसको उस ट्यूमर या एडिनोमाइसिस का जो प्रॉब्लम है उसका अंदर ही उसको श्रिंक कर सकते हैं, और श्रिंक करने के बाद आपका डिजीज फ्री हो जाओगे और आपका सिम्टम्स कंप्लीट रिलीव हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम्स जो डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं, अगर आपको प्रोलॉन्ग मेडिसिन, बहुत दिनों तक आपको मेडिसिन आप ले रहे हो यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए, तो इस मेडिसिन बहुत दिन लेने के बाद जब स्टॉप करोगे तो ये रिबाउंड फिर से आपका वो रिकरेंस ब्लीडिंग जो है वो फिर से आ सकती है, पहले से ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है। और दूसरी और एक चीज़ है, जब आप मेडिसिन बहुत दिनों तक लेते हो तो ये मेडिसिन के वजह से आपको मेनोपॉज बहुत जल्दी आ सकती है। मेनोपॉज है लेडीज़ का एक स्टेज जहाँ पे जनरली आफ्टर 45 और 50 ईयर्स अबव there is cessation of menstruation. Every ladies knows it, and this condition may come earlier if you take the prolonged medicine for the uterine fibroid, or even after the hysterectomy. If you go for the surgery, the like removal of your uterus for excessive bleeding or the uterine fibroid, that time also you may get early menopause, and menopausal symptom के साथ आपको osteoporotic या बहुत वीक हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं मैक्सिमम डॉक्टर्स किसी भी वजह से शायद आपको ये नहीं बताया हो, और इसका जो और एक ऑप्शन है यूट्रेन, जो मैंने बताया यूट्रेन आर्टरी या यूट्रेन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, जिसमें ये आपको जैसे प्री मेनोपॉज जैसा कंडीशन कभी नहीं आता है, और रिकरेंस कंपैरेटिव टू द मायोमेक्टोमी, मायोमेक्टोमी जिसमें एक ऑपरेशन के दौरान आपका अगर फाइब्रॉइड है तो उसको निकाल दिया जाता है। ये मायोमेक्टोमी और मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, हार्मोनल मेडिकेशंस फॉर द यूट्रेन फाइब्रॉइड दैट में ऑल्सो हैव द रिकरेंस। बट इफ यू कंपेयर विद द यूट्रेन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, बहुत सारे जर्नल्स में दिया हुआ है, इट इज मच लोअर देन द सर्जरी इन यूट्रेन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए या आगे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस ट्रीटमेंट के बारे में सारे लेडीज़ और जिनको ये सब प्रॉब्लम है लाइक एडिनोमाइसिस या यूट्राइन फाइब्रॉइड, उसकी वजह से जो तकलीफ़ें हो रही है उन तक ये बातें पहुंच जाए, और जो एक अच्छा ऑप्शन है फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन विदाउट सर्जरी और विदाउट टेकिंग प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस, इसके बारे में सबको अवेयर हो जाए। इस ट्रीटमेंट का वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझे ही कॉन्टैक्ट करना है या मेरे पास ही आना है, आपका नज़दीक की कोई भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हो और इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हो। और यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशंस का जो बेनिफिट्स है, इसमें आपको प्रॉम्प्ट और अर्ली रिकवरी होती है, रिकवरी टाइम बहुत कम होते हैं, और आपका यूटेरस प्रिजर्व रहते हैं, और इसमें कोई ओपन सर्जरी नहीं करते हैं, तो इसलिए कोई स्कार नहीं रहते, और हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम बहुत ही कम होता है, या सेम डे या ओवरनाइट स्टे के बाद आपको डिस्चार्ज किया जा सकती है, जो कंपैरेटिव टू द सर्जरी बहुत ही कम है। एटलीस्ट आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी और द मायोमेक्टोमी एटलीस्ट 3 to 7 days you have to be admitted in a hospital. But for the uterine artery embolization जो मैंने बताया, सेम डे और द ओवरनाइट एडमिशन के बाद आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है आफ्टर दिस प्रोसीडियर। फ्रेंड्स, है ना, ये सब बहुत ही अच्छी एक ट्रीटमेंट जो लेडीज़ और गर्ल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, साबित हो सकती है। आई जस्ट मिस्ड आउट वन थिंग दैट इवन आफ्टर द सर्जरी और द मायोमेक्टोमी, द प्रेगनेंसी, if you desires your family is not complete and you desires for the next pregnancy, then after the surgery 2 years तक जो इंटरवल पीरियड होता है कॉन्सीव करने का उसके, लेकिन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बाद कॉन्सीव करने का जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत कम होती है, बहुत कम टाइम में यू कैन गो फॉर कॉन्सीव कंपेरेटिव टू द सर्जरी, एंड आफ्टर द सर्जरी देयर इज चांसेस ऑफ scar pregnancy which may be a complication of the pregnancy. But in the fibroid embolization, we didn't put any cut, we didn't touch the uterus except giving the medicines through a tube, so there is no chance of scar pregnancy. थैंक यू। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या आगे फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि वो इस अच्छी ट्रीटमेंट के बारे में, जो लेडीज़ है जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग है या यूटरस फाइब्रॉइड है या एडिनोमाइसिस जैसा प्रॉब्लमेटिक गाइनोकोलॉजिकल डिजीज़ है, उनका इस ट्रीटमेंट के बारे में पता चले और वो इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।